Hello, aspirants. I welcome you all to IS Mentorship. I hope you all are doing good and you all have already completed Geography Class 6 that has been uploaded in the playlist. And till now, we have covered chapter 1 to 8, that is, whole of your NCERT book of Class 6 and that too of subject Geography. ये हमने कर लिया है. अब बारी आती है दूसरे सब्जेक्ट लेने की एंड वी हैव टेकन योर सिविक्स. ठीक है, हमने सिविक्स लिया है. सिविक्स इसलिए लिया है बिकॉज पॉलिटी प्लेज ए मेजर रोल इन योर बिल्डिंग बेस, फाउंडेशनल बेस, सो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन सिविक्स एंड आफ्टर सिविक्स वी विल बी जंपिंग टू इकोनॉमिक्स. तो नाउ आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन द ज्योग्राफी. अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली कॉल on IS mentorship and you can connect with the mentor. They will help you, they will guide you, and do make proper use of mind maps which has been provided, which has been attached in every lecture of geography. वैसे ही आपको civics का भी मिलेगा और सारे subjects के आपको मिलते जाएंगे. तो माइंड मैप का बेसिक मोटिव ये है कि आपका रिविजन अच्छे से हो जाए. ठीक है, तो उस पर्पस के लिए वी हैव bought this initiative. So this will be our lecture number 1 for civics class 6th and the chapter 1 is your understanding diversity. Clear? Very important word we are going to know, that is your diversity. डाइवर्सिटी से हमको बेसिक फंडा क्या समझ में आता है, डाइवर्सिटी होती क्या है. मीन्स अलग अलग वैरायटी अगर एक साथ रह रहे हैं या सरवाइव कर रहे हैं अलग अलग, आप देखते हो एक ही प्लेस पे. At your home only you can see there are small plants also, there are big trees also, there are grasses also. ठीक है, all kinds of green you can see there. तो वो क्या है, that is a very good example of diversity. क्यों? क्योंकि देखिए, हो सकता है कि भाई जो छोटे प्लांट्स हैं उनका मन करेगा कि हाँ भाई हमको तो अलग रहना है, तो वो शायद वहां पे ग्रो ना करें, बट ऐसा वो करेंगे नहीं. Why? Because all of them are interdependent on each other because of some reasons. ठीक है, बिग ट्रीज भी इंटरडिपेंडेंट है स्मॉल प्लांट्स के, प्लांट्स जो है वो इंटरडिपेंडेंट है ग्रासेस के. दैट इज वाई दे आर, अब उनके मन में ये आ गया है कि नहीं भाई अलग रहने से काम नहीं चलेगा, यू नीड टू लिव टुगेदर टू हैव अ गुड लाइफ. ठीक है, टू हैव मोर यूजफुल लाइफ. So that is why diversity is very important and that too ऐसी कंट्री में जहाँ पे हर तरह के लोग हैं, हर तरह का रिलीजन, कल्चर, डायलेक्ट, लैंग्वेज, सब चीज है. तो वहां पे अगर बिना डाइवर्सिटी के अगर पीपल एग्जिस्ट करते हैं तो देयर विल बी श्योरली कॉन्फ्लिक्ट. सो दैट इज वाई फॉर इंडिया डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो, डाइवर्सिटी इन इंडिया. ठीक है, people speak different languages, they have various types of food, they used to celebrate different festivals, they used to practice different religion. और यही एग्जाम्पल है आपका डाइवर्सिटी का. मतलब मैंने बता दिया डाइवर्सिटी का क्लियर, अगर मैं मीनिंग पे जाऊं तो उसका मतलब होता है वैरायटी. ठीक है, वैरायटी. तो ये आपको समझना है. अब डाइवर्सिटी का ओरिजिन एंशियंट टाइम से हमको देखा गया है. क्यों? क्योंकि अर्लियर इन ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम पीपल वेयर नोमैड. नोमैड मतलब इधर उधर घूम के अपना सब करने वाले. ठीक है, जो चलते हैं, जो एक प्लेस पे सेटल नहीं होते, मतलब दे आर नॉट सेटल्ड एट वन प्लेस, दे आर नॉट सेटल्ड एट वन प्लेस. ठीक है, so later on they started social life which led to the diversity because all of them were getting help from each other. This person was helping this person to burn fire to make food and this person was giving shelter, etc, etc. So in that case people started to live together and then diversity led to came into the picture. ठीक है, human beings are social animals, thus cannot fulfill all of their needs. Obviously they need plants to eat food, to make food. They also need animals for their business, for
selling out the milk and dairy products also. ठीक है, so everything is interrelated, that is why diversity is important. ठीक है, they depend on each other to fulfill various type of need. ये मैंने आपको भी बताया, different activities हो गए, culture हो गए, skill हो गए, location हो गया. Depending upon all the things, diversity is being catered. ठीक है, ऑल्सो हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस. भाई ऑब्वियस सी बात है, जो जम्मू कश्मीर के पीपल हैं उनका एक अपना ग्रुप होगा, दे आर कंफर्टेबल इन दैट ग्रुप. उनको साउथ, when they will be coming in south region, they will find it a little difficult to adjust. ठीक है, हिस्टोरिकल पर्पस जो लंबे समय से साथ चलते आए हैं, ऑब्वियसली जैसे ट्राइब्स हो गए, they will find comfortable to live as they are coming from the time of ancient times. ठीक है, so that is why historical and geographical both are influencing. Now let us try to understand case study of Ladakh in Kerala to understand more about diversity. लद्दाख हमको पता है, अगर ये हमारा इंडिया है, इंडिया का अगर मैं जम्मू कश्मीर वाला जो पोर्शन ड्रॉ करूं तो ये वाला पार्ट अपना लद्दाख है, राइट. दिस इज योर लद्दाख, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर. ठीक है, एंड दिस इज अ डेजर्ट, बेसिकली डेजर्ट है. डेजर्ट का मतलब होता है वहां पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम है. डेजर्ट का मतलब बस रेती नहीं होता, सैंडी नहीं होता. जिस भी रीजन का प्रोडक्टिविटी कम है उसको डेजर्ट बोला जाता है. So because of this less productivity and because of the desert nature of Ladakh, there is very little agriculture possible. तो because snow भी cover है, क्योंकि high elevation पे है, mountainous region पे है. So that is why people here keep sheep and goat, and they also produce pashmina wool. Because of sea, geography के वजह से कितनी सारी चीजें influence हो रही है. उनका रहना, उनका खाना, उनका dependence, सब कुछ अलग है. ठीक है, बुद्धिज्म लद्दाख में है, दैट रीच्ड लद्दाख थ्रू तिब्बत. ठीक है, मतलब हाँ, जैसे यहाँ पे आपका तिब्बत है चाइना का, तो यहाँ पे जो बुद्धिज्म है वो यहीं से होके ही आया है. ठीक है, सो ऑल्सो इस्लाम वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड मोर देन 400 years ago, इसीलिए यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है. क्लियर, अंडरस्टूड. तो ये लद्दाख की कहानी है. नाउ इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट केरला, केरला कहाँ है? साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. ये आपका इंडिया है, तो यहाँ पे आपका लद्दाख, सॉरी केरला है. ठीक है, यहाँ पे इट इज सराउंडेड बाई सी ऑन वन साइड एंड हिल ऑन अदर साइड. कैसे? यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स में माउंटेन है. स्पाइसेस सच एज पेपर, क्लोव्स, कार्डमम हो गए, दे ऑल ग्रो इन दैट हिल्स. ठीक है, नेक्स्ट जूइश और अरब ट्रेडर्स भी यहाँ पे आए. ठीक है, कैसे आए? क्योंकि भाई कोस्टल एरिया है, तो दे फाइंड इट इजी टू कम हियर थ्रू पोर्ट्स और थ्रू शिप्स. तो बहुत सारे लोगों का केरला में एंट्री हुआ अलग अलग रूट की वजह से, अलग अलग रीजन्स की वजह से. यहाँ पे इसीलिए डिफरेंट रिलीजन है. जुडाइज्म मिलेगा, इस्लाम मिलेगा, क्रिश्चियनिटी मिलेगा, हिंदुइज्म मिलेगा और बुद्धिज्म मिलेगा. ठीक है, तो फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट भी राइस के लिए सुटेबल है. तो हमने एक्चुअली में क्या समझा कि भाई जो लद्दाख रीजन है वहां पे ज्योग्राफी ऐसी है कि बहुत कम हैबिटेशंस हैं, और अगर है भी तो मुस्लिम्स के ज्यादा हैं. बट हियर बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ केरला पोर्ट एरिया, यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, बहुत सारे आपको रास्ते मिले पहुंचने के, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन मिले आपको. ठीक है, क्योंकि देयर वाज अमेलगमेशन ऑफ डिफरेंट पीपल, और इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के स्पाइसेस भी ग्रो होते हैं, और यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशंस भी है. ठीक है, हाँ, तो फर्टाइल लैंड है राइस के लिए, ये भी आप लोगों ने समझ लिया. तो बेसिकली बिकॉज ऑफ द डिफरेंट जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल पर्पस, हम समझते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया का हैबिटेशंस कैसे डिफर करता है. So this was your case study about Ladakh and Kerala. Now if we try to move ahead, before going ahead, this is our mentorship program. You can directly give a call on this number to know more about this program. And this program is being led by our mentor, our senior mentor, Riyasat Ali sir. He will guide you in all phases of your preparation. ठीक है, तो किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए तो you can give call on this number. Also, this is our test series program which is going to start from 19th June. ठीक है, it already have been started. तो आप जल्दी जाके इसमें एनरोल करिए.
अगर कोई डाउट है तो कॉल करिए, रियासत सर आपका डाउट क्लियर करेंगे और आप इस प्रोग्राम में जुड़िए। सो दिस इज योर थिंग। नेक्स्ट important topic is unity in diversity. This term unity in diversity was coined by Jawaharlal Nehru. ठीक है, you should be knowing for mains answer, very important. ठीक है, unity in diversity was coined by Jawaharlal Nehru. ठीक है, बेसिकली अगर डाइवर्सिटी है तो सबको डाइवर्सिटी है मतलब अलग अलग है, क्लियर। जैसे ये एक ब्लू मेंटालिटी है, ठीक है, मान लीजिए कि येलो मेंटालिटी है और एक रेड मेंटालिटी है। बट नाउ व्हाट दे, अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे एक प्लेट है, खाना तीनों को है, हाउ दे विल डू। अगर वो लड़ाई करेंगे तो खाना किसी का नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो साथ में आके शेयर करेंगे तो खाना सबको कोई खा सकता है एंड एवरीवन विल बी हैप्पी। तो इसीलिए यूनिटी का होना बहुत जरूरी है डाइवर्सिटी में, टू एक्सेस रिसोर्सेज एंड टू हैव अ पीसफुल लाइफ। सो दैट इज व्हाई इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, और during the time of British only, unity and diversity came into picture. People came together to fight against the British rule in India, despite having different culture, religion. ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड के होने के बाद भी they came together and fight stood against Britishers. तो ये भी एक ancient या नहीं, ancient नहीं बोलेंगे, this can be a very good example for your unity and diversity. Clear? So this was all about your chapter number 1, that is your diversity. अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है सिविक्स का। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी गोइंग टू चैप्टर 2 और डाइवर्सिटी के साथ हम समझेंगे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी। क्लियर? सो रिवाइज कर लीजिएगा, ये चैप्टर छोटा सा ही था, रिवाइज करके ही नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़िएगा। ओके।